Good morning, all of you. Today we are going to discuss about matrices, chapter 3, NCERT, class 12, part 1, mathematics. सबसे पहले बात आती है कि मैट्रिसेस है क्या और मैट्रिसेस का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं। Actually, matrices are store of information. Matrix is a store of information. मैट्रिक्स एक इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने की जगह है इन मैथमेटिकली। मैट्रिक्स हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम डे टू डे लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि हम किसी दवाई की दुकान में जाते हैं और हम उससे किसी दवाई की डिमांड करते हैं तो उसके पास जो शेल्फ होते हैं उसमें से वो आपको जो आपने डिमांड की हुई है वो दवाई आपको निकाल के दे देता है। एक्चुअली इट इज़ जो शेल्फ है वो एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स ही है। उसमें उसको मालूम है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, स्टोर। इसी तरह से अगर हम किसी किराने की दुकान में जाएंगे, हम कोई सामान की डिमांड करेंगे तो उसको वो सामान आपको उस अपने शेल्फ से निकाल के दे, उसको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स का इस्तेमाल हम गणित में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैट्रिक्स एक ऐसी मेथड है जो कैलकुलेशन को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देती है। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स की आवश्यकता होती है। इससे हमारा जो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। ऐसी कई फील्ड्स हैं जहाँ पर हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैट्रिक्स इज अ स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए इसको हम देखते हैं कि हम इसको करते कैसे हैं। ऐसे मान लीजिए मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि राधा हैज़ 15 नोटबुक्स। राधा के पास 15 नोटबुक है। इस इंफॉर्मेशन को मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना। तो हम इस इंफॉर्मेशन को हम टेबलर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। नोटबुक्स Radha. How many notebooks that Radha has? Is 50. It is a tabular form. We represent like that. We can represent it as 50. Here we understand that number written inside the bracket represent the number of notebook that Radha has. We can form this tabular form is also here. Notebook articles Radha is 50. Again we represent this one. Number of notebook that Radha has is 50. Got it? Now suppose we have information Radha has 15 notebook and 6 pens. Radha has 15 notebooks and 6 pens. So we can represent this information in tabular form like that. Radha notebook and pens. Radha has 15 notebook and 6 pens. This it can be represented as 56. This information can also be expressed in the following manner. Notebook, pen and Radha.
राधा के पास 15 नोटबुक है और 6 पेन है। इट कैन बी एक्सप्रेस लाइक दैट। आई बात समझ में? अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, राधा हैज़ 15 नोटबुक्स, 6 पेन्स, फौजिया हैज़ 10 नोटबुक, 2 पेन्स, Simran has 13 notebook and 5 pens. We can represent this information in the following tabular form. Notebook and pens, Radha, Fauziya and Simran. Radha has 15 notebooks, 6 pens. Fauziya has 10 notebook, 2 pens. Simran has 13 notebooks and 5 pens. We can represent it as (15, 6, 10, 2, 13, 5). Or this information can be arranged in the following tabular form. We write here notebook first, pens, Radha, Fauziya and Simran. Notebook, Radha has 15 notebooks, Fauziya and 6 pens. Fauziya has 10 notebook, 2 pens. Simran has 13 notebooks, 5 pens. It can be expressed as (15, 10, 13, 6, 2). Look at here. When we represent the information in the capital bracket, here we found that vertical horizontal lines entries in horizontal line and entries in vertical lines. So here the entries in horizontal line is called row. Here row 1, it is row 2, it is row 2, 3, and it is column 1, it is column 2. Similarly here it is row 1, row 2, column 1, column 2, column 3. आई बात समझ में? Now, अभी हमने जो आपको एक इंफॉर्मेशन का डिस्प्ले बताया है, जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं, whenever we arrange or display the information in given manner, it is called matrix. An arrangement or display of the above kind is called a matrix. Now we are going to discuss about the formal definition of matrix. A matrix is an ordered rectangular array. A matrix is an ordered rectangular array of number or functions. What is matrix? Matrix is nothing. It is a rectangular, ordered rectangular array of number or function. And the numbers or functions are called elements or
ज्योमेट्री ऑफ द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स में को बनाने वाले जो नंबर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। हियर सम एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आर गिवन। ए यू कैन राइट हियर A1 A इज इक्वल टू, मैं अपना यहाँ एक अपना एग्जांपल लिख रहा हूँ, कॉपी नहीं कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, it is a matrix. B is equal to 2 plus I 3 2 1. We can also write C is equal to cos x sin x tan x cot x minus sin x x। आई बात समझिए। अभी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट रोज। जो हॉरिजेंटल लाइंस है वो रो बनाती हैं। यहाँ पर ये रो 1 रो 2 रो 3 एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कंस्टिट्यूट कॉलम्स। ये है कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2। आई बात समझ में। नाउ यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वास्तव में है क्या? देखिए, जनरली जब हम कभी भी किसी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर कोई नई चीज़ नहीं है। ऑर्डर का तात्पर्य है कि यदि आप किसी मैट्रिक्स को बताएंगे तो सबसे पहले उसमें बताएंगे कि उसमें कितने रो और कितने कॉलम। पहले आपको बताना है रो की संख्या कितनी है, और उसके आपको बताना है, उसके बाद आपको बताना है कि उसमें कितने कॉलम है। पहले कॉलम और पहले रो नहीं बताएंगे, और यही उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है ए, तो इसमें आपने देखा कितनी रो हैं, 3 रो हैं, और इसमें कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि इसका जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2 है। अब आप समझ गए होंगे मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा। 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पर कितना है, 2 क्रॉस 3। बहुत बढ़िया। नाउ इन जनरल, sorry, a matrix having m rows and n column is called a matrix of order m cross n। यदि किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है तो वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n कहलाएगा। इन जनरल, suppose that we have a matrix m cross n, means उसमें m रो है और n कॉलम है। we can write here A is equal to aij m cross n। now values of I is varies from 1 to n and value of j is varies from 1 to n। we can write here like that in expanded form this matrix A11 A12 A1j A1n A21 A22 A2j A2n A1
sorry, I1, AI2, AIJ, AIN, AM1, AM2, AMJ, AMN, M cross N. What is here? We write A11. इसका क्या मतलब होगा? A11 अगर हमने लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है? A1. It means that entries in first row and first column. A11 represent the entry or element which present in given matrix first row first column. A12 means element or entry which present in given matrix first row second column. Similarly, we can in general form AIJ. AIJ represent the element or entry which present in ith row and jth column. अगली बात यहाँ तक समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं. ना यहाँ हमें 2-3 चीज़ें हैं. ब्लू में लिखा हुआ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जिसमें हमें ध्यान देना रहता है हमेशा. इस चीज़ को आप ज़रूर पढ़ा करिए कि क्योंकि NCERT में ये पूरी चीज़ें बताएगा कि हमको इस बुक में हम क्या क्या किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करेंगे. द मैट्रिक्स नेमली AIJ, A is equal to AIJ indicate the matrix is a matrix of order n का. यानी यदि कहीं भी यहाँ लिख दिया गया है इस बुक में अब A is equal to AIJ M क्रॉस N, अब ये इस बुक में कहीं पे भी लिखा होगा, क्या अंडरस्टैंड करना है हमें? इट इज एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N. दूसरी बात, वी शैल कंसीडर ओनली द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर रियल और फंक्शन टेकिंग रियल वैल्यूज. यहाँ पर अब हम आगे जितने भी हमको पढ़ना है, हमें केवल वही मैट्रिक्स पढ़ना है जो जिसमें रियल नंबर्स होंगे और जो फंक्शन होंगे उनकी वैल्यू रियल होगी. आई बात समझ में? बहुत बढ़िया. अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल 1 डिस्कस कर रहे हैं. एग्जांपल 1, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज A1, 2 and 3. यहाँ पर फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3 में कितने मेन वर्कर्स हैं और कितने वुमेन वर्कर हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है. अब आपसे पूछा जा रहा है रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स. आपको कहा जा रहा है कि अब इस इंफॉर्मेशन को आप 3x2 में आपको रिप्रेजेंट करना. तो इसको 3x2 में हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? वी विल राइट अ ब्रैकेट 30, 25, 31, 37 and 26. It is the order 3x2. देखिए, जब हम कभी भी मैट्रिक्स लिखेंगे, हमें ये मैट्रिक्स बोला है तो ब्रैकेट आपको लगाना ही लगाना है. अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. इस बात को आपको विशेष जल्दबाजी में आप लोग इस तरह से लाइन न लगाएं. आपको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है. जब कभी भी मैट्रिक्स होगा आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है. आ गई बात समझ में? अब इसके बाद इसने दूसरी चीज़ पूछी हुई है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट. मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स आपने लिखा हुआ है उसके थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में जो एंट्री है वो क्या रिप्रेजेंट करे. देखिए A32 यानी थर्ड एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम. व्हाट इज इट? इज 26 third row and second column. Now what is it? It is the number of women worker in which factory?
third factory. So entry in the third row, second column represent number of women worker in third factory. Got it? Now example number 2. If a matrix has 8 elements, what are the possible order it can have? देखिए, मैं पिछली स्लाइड में आपको ये बताना भूल गया कि एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे. तो एक मैट्रिक्स में एलिमेंट की जो संख्या होगी वो उनके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, कि प्रोडक्ट के बराबर होती है. जैसे मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास है 3x2. तो मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A=AIJ 3x2. इसका तात्पर्य हुआ कि इसमें जो होंगे कितने एलिमेंट्स होंगे, आपके पास 6 एलिमेंट्स होंगे. 3 × 2 = 6. इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है AIJ m×n, तो इसका मतलब हुआ इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स इन A, टोटल एलिमेंट्स इन A = 6 mn. आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा कि एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हैं, तो आप बताइए कि उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं. तो जितने भी 8 के फैक्टर्स हैं सभी आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए 1x8 = 8, 8x1 = 8, 2x4 = 8, 4x2 = 8. So here the possible order is 1x8, 8x1, 2x4 and 4x2. Okay, now come in example number 3. Here we have to construct a 3x2 matrix and given by whose elements are given by AIJ. ith रो और jth रो में जो एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म का होगा, हाफ ऑफ I-3j मॉडुलस. सो 3x2 मैट्रिक्स है. फर्स्ट वी हैव राइट द जनरल फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स. 3 रो एंड 2 कॉलम. इसका मतलब जो I की वैल्यू है वो 1 से लेके 3 तक जाएगी और J की वैल्यू 1 से लेके 2 तक जाएगी. तो इसका मतलब है A11, A12, इससे आगे नहीं जाएगा, A21, A22 और A31, A32. ये आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स है. अब हमें A11 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, I की वैल्यू 1 रखनी है और J की वैल्यू 1 रखनी. कहाँ रखनी है, आपका जो एलिमेंट की वैल्यूज़ दे रखी ith रो और jth रो में जो एलिमेंट की वैल्यू दे रखी वहाँ हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है. और जैसे मान लीजिए यहाँ इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ 1 - 3 दैट इज़ इक्वल टू 1. Similarly we can find A12 क्या, I की वैल्यू 1 हो गई और J की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई. तो 3 × 2 = 6. ये हो गया आपके पास 5/2. A1 निकालिए, ये हो गया हाफ 2 - 3 हो गया 1/2. मॉड लगा हुआ है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा. A22 निकाल लीजिए, A22 आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा. और A31 निकालिए, हाफ
3 - 0 हो गया, ये 3 2 निकालिए, ये हो जाएगा 3/2। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम ओके नाउ वी आर आगे का जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।